Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind, and in today's video we are going to discuss about a very important but basic topic, which is weathering. So weathering is a important topic in geology and geography, and most of you might have gone through it. But today we are going to discuss weathering in detail, right from basics, like definition, types of weathering, to detailed topics such as chemical weathering, which is very important, like hydration, hydrolysis, etc. All right, so stick till the end, watch the video till the end. It's my humble request to you. Also, if you are new to the channel, don't forget to subscribe to GeoMind and join my Telegram group. I have given the link in my description, in the video's description below. Okay, so my name is Swapnil, and let's start with weathering. So what is weathering? Weathering refers to breakdown or disintegration and decomposition of rocks in situ. In situ का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। सो जब रॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ब्रेक डाउन करती है, डिसइंटीग्रेट होती है या डिकम्पोज होती है ड्यू टू वाटर, टेम्परेचर, विंड, गैसेस, सो यानी कि मैकेनिकल और केमिकल चेंजेस जब आते हैं रॉक्स पे इन एजेंट्स की वजह से, वाटर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, विंड, गैस, organisms. Okay, but there is one catch, that there should be no large scale transport of weathered material. Okay, by the process of denudation. Denudation का मतलब होता है कि erosion और transport होना, ठीक है, except mass movement of weathered material down slope under impact of gravity. ठीक है, तो इसमें exception ये है. Then weathering products are source material of soils and sedimentary rocks. Thus weathering constitute the first step in chain of processes that produce sedimentary rocks. Okay, so sedimentary rocks बनने के लिए weathering products का होना जरूरी है. So they are the source material. The weathering products are the source material, remember, for soils and sedimentary rocks. Now from a geomorphological perspective, rock weathering is extremely important. First, weathering processes prepare earth materials for subsequent transportation by agent of erosion, and due to that our landscape is evolving. Secondly, is weathering an essential component of soil formation. Okay, we know that soil is very important and weathering is an essential component because through weathering soil is formed, and we know that weathering processes are directly responsible for landform and landscape evolution. Now the process of weathering tends to be self-reinforcing. Weathering weakens the rock and make them more permeable, and so rendering them more vulnerable to removal by agent of erosion. And removal of weather product exposes more rock to weathering. So कहने का मतलब क्या है, एक तो weathering की प्रोसेस से क्या होगा, ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग प्रोसेस कैसी है, देखो weathering क्या करती है, रॉक को वीक करती है. जब रॉक वीक हो जाती है तो वो इजिली परमेबल हो जाती है, ठीक है ना, एंड इजिली इरोडेबल हो जाती है वेदरिंग के बाद. ठीक है, जब वो इरोड हो जाएगी, लेट्स से देयर इज अ लेयर ऑफ रॉक्स, ओके, एंड लेट्स से दिस अपर रॉक इज गेटिंग weathered, देयर आर different joints, etc., and this is getting very weathered and loose. And after it's getting weathered and loose, let's say wind is coming here and transporting this material to river or sea, whatever, and after the transportation this fresh surface is exposed to the weathering agents. Okay, so this layer first and layer 2, so after removal of layer first, the layer 2 will be exposed and it will get weathered. So this is a self-reinforcing process. Okay, and second one is that weathering से क्या होगा, like let's say this is a chunk of rock and weathering से, मैकेनिकल weathering से ये rock break down हो गया, ठीक है ना. break down होने के बाद इसका surface area और ज़्यादा increase हो जाएगा, right? So volume will remain same but surface area will increase. As you can see here, this is the 6 square meter, and after it break down into 4 blocks, the area will become high, and since area will become high, the chemical weathering will act fast on this chunk of rock, right? And similarly it will act faster on this one. So this is a self-reinforcing process. Hope you understand it. अब बात आती है कि why does rock weather, weathering क्यों होती है. इसमें सिंपल सा क्या है कि अर्थ मटेरियल्स जो होता है, weathering is the response of earth material to a changing environment, right? So we know that igneous rocks, rocks are usually made
in an environment which is very high pressurized, high temperature. Okay, and when this rock is exposed to Earth's surface, it is experiencing very low pressure and a low temperature. Okay, and different agent of weathering such as oxygen, water, which were not present in deep down the Earth's surface. Right now they are subjected to a very different and comparatively hostile environment, and that's why they began to break down and disintegrate, and that's why weathering happens. Now what are the types of weathering? Actually there are three types of weathering: physical or mechanical weathering, chemical weathering, and biological weathering. It's a very basic. And in reality what happens, even though we have divided the weathering processes in three types, these weathering processes act synergetically, okay, together on a rock, not individually. Now there are relative abundance of rock types and mineral exposed to weathering at Earth's surface. So सबसे ज़्यादा जो rock exposed है weathering के लिए Earth surface पे वो है हमारा shale. Shale is a sedimentary rock, right? Then there is sandstone, also a sedimentary rock. Then there are granite, limestone, basalt, and others. Okay, so most of the chunk, like more than 50% is of shale. Okay, and then there is sandstone. Then there is granite 15%, and so on. एंड अगर मिनरल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मिनरल एक्सपोज्ड है वेदरिंग के लिए वो है अपना फेल्ड्स्पार. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब हम आगे आते हैं, देखते हैं कि कंट्रोल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. सो ड्यूरेशन ऑफ वेदरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ओके, अगर लेस वेदरिंग होगी, इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मोर वेदरिंग, इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो ड्यूरेशन ऑफ वेदरिंग इंपॉर्टेंट है. अगर जितना ज़्यादा वेदरिंग होगी उतना ज़्यादा सॉइल बनेगा हमारा. ठीक है ना, सॉइल फॉर्मेशन होगी, इरोजन भी ज़्यादा होगा. दूसरा है बेड रॉक टाइप, कि बेड रॉक जो है वो किस तरीके की है. अगर ज़्यादा स्टेबल मिनरल है तो लोअर वेदरिंग होगी. लाइक क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज वेरी स्टेबल होता है अपना सरफेस पे, सो इट विल रिजल्ट इन लोअर वेदरिंग. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ क्वार्ट्जाइट रॉक, अगर फेल्ड्स्पार है तो रिजल्ट इन हायर वेदरिंग. ठीक है, लेस स्टेबल मिनरल. देन देयर इज क्लाइमेट विच इज रिस्पॉन्सिबल. अगर लो टेम्परेचर का क्लाइमेट है तो लेस वेदरिंग होगी, लेस केमिकल वेदरिंग होगी. ठीक है ना, डिसोल्यूशन, लेस फिजिकल वेदरिंग एट हायर टेम्परेचर. सो लोअर टेम्परेचर पे फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज इन फिजिकल वेदरिंग देयर इज फ्रॉस्ट वेजिंग and all sorts of things which ice can do to rocks, okay, not due to expansion of ice. But at higher temperatures there is less physical weathering but more chemical weathering. Okay, you have to remember this. अब रेनफॉल अमाउंट, ये भी एक फैक्टर होता है कि लिटिल रेनफॉल है या हैवी रेनफॉल है. लेस वेदरिंग इज ड्यू टू लिटिल रेनफॉल, हैवी वेदरिंग इज ड्यू टू हाई रेनफॉल. एंड अगर हाई रेनफॉल होगी तो वाटर ज़्यादा होगा, उसकी वजह से केमिकल वेदरिंग भी ज़्यादा होगी. देन देयर इज रेनफॉल एसिडिटी, लो एसिडिटी, हाई एसिडिटी. ओके, देन देयर आर टोपोग्राफी, कि स्टीप स्लोप्स है तो लेस केमिकल वेदरिंग होगी एंड मोर फिजिकल वेदरिंग होगी. जेंटल स्लोप है तो लेस फिजिकल वेदरिंग होगी, मोर केमिकल वेदरिंग होगी. वाई? बिकॉज एट स्टीप स्लोप्स यूजुअली क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता है एक ही जगह पे सिट रहने का और केमिकली वेदर्ड होने का. बट एट जेंटल स्लोप्स रॉक कैन बी देयर एट ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ टाइम, एंड इफ देयर इज very large amount of time when a material is exposed at a same region, there will be high chances of chemical weathering. Okay, so this is a very important chart. Then there is mineral solubility in water. अगर लो है तो क्वार्ट्ज है, मॉडरेट है पायरोक्सिन, फेल्ड्स्पार. कैल्साइट जो है वो सबसे हाईएस्ट सॉल्युबल होता है. रॉक का स्ट्रक्चर मैसिव है, सम वीकनेस है, वेरी फ्रैक्चर्ड और थिनली बेडेड है, तो वेदरिंग हाई हो जाएगी. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर, अगर बेयर रॉक है, थिक है, थिन टू मॉडरेट है. ठीक है, हाई वेदरिंग है तो थिकनेस की क्या होगी, ऑब्वियसली थिक होगी सॉइल लेयर, बिकॉज हाई वेदरिंग मीन्स हाई सेडिमेंट्स, हाई नंबर ऑफ सेडिमेंट्स एंड थिक लेयर्स. Okay, length of exposure,
शॉर्ट एक्सपोजर है तो कम वेदरिंग होगी, लॉन्ग एक्सपोजर है तो हाई वेदरिंग होगी। ऑर्गेनिक कंटेंट हाई है तो वेदरिंग भी ज़्यादा होगी, ओके, ड्यू टू ऑर्गेनिजम्स एंड अदर चिलेशन प्रोसेसेस। वेदरिंग डेब्री की बात करें तो वेदरिंग जो डेब्री होती है, जब वेदरिंग रॉक्स acts upon rocks, they produce solid colloidal and soluble materials, okay, so such as solids like boulders, sand, silt and clay fragments. So secondary clays built from weathering products by a process called neoformation. At the lower end of the sizes, they range from grade into precolloids, colloids and solutes. So usually जो आप ग्रेन्युलर साइज देखते हैं फ्रॉम बोल्डर टू क्ले, ये जनरली हमारा वेदरिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर सॉल्यूट्स आते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर के, ठीक है। एंड देन देयर इज कोलॉइड्स आर particles of organic and mineral substances that range from 1 to 100 nanometer. Okay, so actually colloids are bigger than solutes. Okay, अब हम बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग की। तो फिजिकल वेदरिंग बहुत ही बेसिक है, सबको पता होगा, तो इसको मैं जो ये टाइप्स हैं फिजिकल वेदरिंग के, उनको मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ओके, यू कैन रीड देम इन एनी बुक. So physical weathering is the process by which rocks are broken into small fragments through a variety of causes, but without significant changes in chemical or mineralogical composition. Okay, so if there is no change in chemical or mineralogical composition and the rock is breaking down, we call it physical weathering. Except in chemical, extremely cold or very dry climate, physical and chemical weathering act together. Okay, so if there is extremely cold, very dry climate, only physical weathering will happen. Okay, and in moderate to high temperature, chemical weathering and physical weathering act together. Okay, so what are the types of physical weathering? We have frost wedging like freeze and thaw, insolation weathering due to high temperature, salt weathering due to formation of salt crystals, wetting and drying cycles, stress release weathering जैसे कि एक्सफोलिएशन डोम्स बनते हैं हमारे, ठीक है ना, okay, biological processes, root wedging, etc. So you can read them in any standard textbook. These are very fairly basic. So our focus will be on chemical weathering. Okay, so chemical weathering involves changes that can alter both chemical and mineralogical composition of rocks, right? तो इसमें हमारा एक फैक्टर आ गया है कि इसमें मिनरलॉजिकल और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है रॉक का, फिजिकल वेदरिंग में नहीं होता है. Minerals in the rocks are attacked by water and dissolved atmospheric gases. So oxygen and carbon dioxide are the very main gases which are responsible for, dissolution of minerals. So causing some component of the mineral to dissolve and remove in solution. Other mineral constituents recombine in situ and crystallize to form new mineral phases. Okay. So sometimes a mineral is dissolved and sometimes a mineral may be crystallized to form a new mineral phase. So there are 6 chemical reaction, or you could say that 6 type of chemical weathering which aids the rock decomposition. First is solution, dissolution, hydration, oxidation reduction, carbonation process, hydrolysis process, ion exchange and chelation, and these are very important processes. So water and dissolved gases play a dominant role in every aspect of chemical weathering. ये आपको ध्यान में रखना है कि वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी है. वाटर एंड डिजॉल्व गैसेस में अपनी CO2 आ गई है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है. So because some water is present in almost every environment, chemical weathering processes are commonly far more important than physical weathering process. ये आपको ध्यान में रखनी है. तो chemical weathering ज़्यादा इंपॉर्टेंट है even in arid climates. Now nevertheless, owing to low temperature of the weathering environment, chemical weathering occurs very slowly. So अगर 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तो केमिकल वेदरिंग क्या है, बहुत स्लो हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है. सो इन हाई टेम्परेचर like more than 30 degree Celsius, chemical weathering will be high. Okay, तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन से एंड देन विल slowly move to more topics. Okay, so solution is what?
Solution, as you can see, is a very simple congruent dissolution. When a mineral goes into solution completely without precipitation of other substances. तो जैसे कि आप लेट्स से सॉल्ट लेते हैं और सॉल्ट को जो आपका घर का सॉल्ट होता है उसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो सिंपल सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहले प्रोसेस तो ये हो गया। तो उसमें क्या होता है, इफ यू आर डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रेसिपिटेट, ओके, ऑफ अदर एनी सब्सटेंस। सो इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन या सिंपल सोल्यूशन या कॉन्ग्रुगेंट डिसोल्यूशन, ठीक है। तो कैल्साइट भी होता है, वो डायरेक्टली ऐसे सोल्यूशन में चले जाते हैं, ठीक है ना। कैल्साइट, डोलोमाइट, अपना जिप्सम CSO4, हैलाइट, NaCl, ठीक है। एंड समटाइम इवन लेस सॉल्युबल मिनरल्स जैसे क्वार्ट्ज है, when it exposes to meteoric water, rain water, it gets into solution, okay। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है रेन वाटर में तो हमें पता है कि CO2 डिसॉल्व होने से H2CO3 एसिड बनता है, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनता है। और ऑब्वियसली जो H2CO3 एसिड है वो ज़्यादा कोरोसिव होता है अपना नॉर्मल वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन की प्रोसेस और ज़्यादा हो जाती है बिकॉज इंक्रीज इन H+ आयंस, ठीक है। तो H2CO3 अगर डिसोल्यूट होगा, डिसोसिएट होगा तो H+ एंड HCO3 बनाएगा, ठीक है ना। H+ आपको पता है एसिड इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मोर एक्सप्रेसिव डिसोल्यूशन होगा हमारा। So it is important weathering processes, particularly in moderately wet climate where carbonate rocks or evaporites are present near the surface or at the water table, ठीक है। तो वहाँ पे डिसोल्यूशन होगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, आप जैसे नाम देख रहे हैं हाइड्रो एंड लिसिस, यानी कि ब्रेक डाउन करना, ठीक है ना। तो वाटर केमिकली रिएक्ट्स विद मिनरल्स एंड ब्रेक देम डाउन टू फॉर्म अदर मिनरल्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो प्लस लाइसिस, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ अदर मिनरल्स, ओके, यूजिंग वाटर, सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। टू फॉर्म अदर मिनरल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन फेल्डस्पार प्रोड्यूसेस क्ले। तो इन हाइड्रोलिसिस वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन कैटायंस एंड हाइड्रोक्सिल आनायंस, ठीक है। ये तो बेसिक है। अपना जो H2 है वो अपना H+ प्लस OH- में स्प्लिट हो जाएगा। अब ये H+ क्या करता है, द हाइड्रोजन आयन इज एक्सचेंज्ड विद अ मेटल कैटायन ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। तो कोई भी सिलिकेट मिनरल होगा उसमें जो मेटल कैटायन होगा, कॉमनली जैसे पोटेशियम होता है या सोडियम होता है या कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं, कैटायन होते हैं, उसको ये H+ रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अभी हम फॉर्मूले में देखेंगे। एंड द रिलीज कैटायंस, जो फॉर्मूले से जो मिनरल्स का जो कैटायन होगा जो रिलीज हो जाएगा उसके बाद वो OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन बिकॉज द रिएक्शन डज नॉट लीड टू कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना। तो ऑर्थोक्लिस फेल्डस्पार कैन ब्रेक डाउन टू यील्ड काइलोनाइट और इलाइट व्हिच आर क्ले मिनरल्स। So here you can see hydrolysis of orthoclase. So this is KlSi3O8, your orthoclase, okay, orthoclase mineral. And here is the H+, which is combining with the formula and replacing the K. So as you can see, K जो है मेटल कैटायन जो है वो OH के साथ कंबाइन हो गया है, ठीक है ना, और इसने इस फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस, ओके। सो H+ इज रिप्लेसिंग K+ here, okay, and K+ is combining with OH-, okay, hydroxyl ion, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है उसमें
QH जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बनाएगा, सॉरी H2CO3 के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बनाएगा, and the potassium carbonate so formed is soluble and is removed by water. The aluminosilicate acid react with water to produce kaolinite. ठीक है, तो जो अपना ये aluminosilicate एसिड है 2HAl Si3O8 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना क्ले मिनरल बना देगा जो कि kaolinite क्ले होती है एंड इज द मोस्ट कॉमन क्ले मिनरल. ठीक है, और अपना सिलिसिक एसिड. सो आई होप यू आर गेटिंग इट. तो क्रक्स क्या है हाइड्रोलिसिस का कि इसमें H+ जो आयन होगा वो रिप्लेस करेगा मेटल आयन को. ठीक है ना, मेटल आयन को रिप्लेस करेगा किसी भी मिनरल का, मेटल कैटायन को रिप्लेस करेगा मोस्ट प्रोबेबली पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम. ओके, एंड इट विल फॉर्म अ न्यू मिनरल. ऑर्थोक्लेज में कौन सा न्यू मिनरल फॉर्म हो रहा है? केओलिनाइट फॉर्म हो रहा है. ठीक है ना. सो ऑर्थोक्लेज इज ब्रेकिंग डाउन, H+ is inserted into the crystal structure, and when this is reacting with the water here, kaolinite is formed. Okay, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑक्सीडेशन की. सो ऑक्सीडेशन क्या होता है? हमें पता है कि ऑक्सीडेशन जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है. ठीक है, एंड रिडक्शन इज बिल्कुल अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन वेदरिंग चीफली अफेक्ट्स मिनरल कंटेनिंग आयरन थ्रू सच एलिमेंट एज मैग्नीज, सल्फर एंड टाइटेनियम मे बी ऑक्सीडाइज ऑल्सो. ओके, सो यूजुअली आयरन ऑक्सीडाइज होता है, जो भी मिनरल आयरन कंटेंट के होते हैं, लेकिन मैग्नीज, सल्फर एंड टाइटेनियम कैन ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज. ओके, so the reaction for iron, which occurs mainly when oxygen dissolved in water comes into contact with iron containing minerals, is written here. So अगर जो किसी भी मिनरल में अगर आयरन है तो you can see the reaction here. If there is a water or simple air you could say, and the iron comes in contact with oxygen, it produces Fe2O3. okay, ऑल्टरनेटिवली Fe2+, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको रिमेंबर. ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो एज यू कैन सी Fe is gaining the oxygen here. Alternatively, the ferrous ion Fe2+, which occurs in most rock forming minerals, may be converted to ferric form. Okay, Fe3+. So your Fe2+ is your ferrous and Fe3+ is your ferric. Now you have to remember Fe2+ is most common in the minerals. Okay, तो यूजली क्या होता है, Fe2+ कन्वर्ट हो सकता है Fe3+ में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, 3+ हो जाएगा. राइट, so oxidation is important in decomposing such ferromagnesian minerals such as olivine, pyroxene, hornblende and biotite. So oxygen combines with iron in these minerals to form reddish brown iron oxide called hematite. तो यहाँ पे secondary mineral ज़्यादा important है, और इन केस येलोइश कलर्ड मिनरल कॉल्ड लिमोनाइट. ठीक है, लिमोनाइट में अपना एक्स्ट्रा वाटर. सो दीज प्रोडक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्टी कलर ऑन द सर्फेस ऑफ डार्क इग्नियस रॉक्स सच एज बसाल्ट एज दे बिगिन टू वेदर. सो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मिनरल्स कौन से डिकम्पोज होते हैं? ज़्यादातर फेरोमैग्नीशियन मिनरल. ओके, फेरोमैग्नीशियन इन they contain Fe and Mg, such as olivine contain Fe. Okay, your forsterite and firelite, pyroxene, hornblende. Okay, you know, ferrocylite and enstatite. hornblende हो गया अपना, and biotite हो गया. So इनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो जो रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, यानी कि हेमाटाइट, it is produced due to oxidation of these minerals,
and sometimes limonite also, okay, when there is water. So अगर आपने मार्स देखा होगा तो मार्स रेड क्यों होता है, वो इसी की वजह से होता है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा है, okay, and due to that these red color minerals are formed. So as you can see here, this is also another example. Pyrite is oxidized to form hematite. So FeS2 plus O2 plus H2O, Fe2O3, 4SO4 and H plus. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको पता है FeS2 यहाँ पे जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज है 2 प्लस एंड यहाँ पे 3 प्लस है, ओके। हाउ, 3 ऑक्सीजन है 2 आयरन है। सो अगर Fe2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेज का पता करना है हमें तो कैसे करेंगे? एक तो सिंपली हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इस पे, ठीक है ना, आयरन पे। एंड दूसरा ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेज -2 होती है, तो यहाँ पे -6 हो गया। सो Fe2, सो दिस हैज टू बी +6, राइट, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी तभी जाके ये +6 होगा, राइट, 2 3 6। सो ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा एंड दिस आर न्यूट्रल। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ओके, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे निकल रहा है। देन देयर इज रोडोनाइट, ओके, ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म पायरोलुसाइड एंड सिलिसिक ऑक्साइड एसिड। देन देयर इज Fe2SiO4 जो कि अपना हेमाटाइट है, सॉरी नहीं, अपना ओलिविन है, फाइलाइट, ओके, Fe2SiO4 is a phyllite, sorry, is an olivine group mineral and phyllite है, it is getting oxidized to form hematite, okay. Then there is iron pyroxene जो अपना फेरोसिलाइट है, okay. This is just for your example, okay. You need not to remember all the reactions, only the examples I am giving you, okay. Plus oxygen giving us hematite which is iron ore, okay. तो ज़्यादातर जो मिनरल हैं फेरोमैग्नीशियम मिनरल वो हेमाटाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फेरोसिलाइट इज प्रोड्यूसिंग हेमाटाइट, अपना ओलिविन इज प्रोड्यूसिंग हेमाटाइट, पायराइट इज प्रोड्यूसिंग हेमाटाइट, ओके। And reduction is also processes, but it is not as important as oxidation, okay. So when water become oxygen deficient, okay, so stagnant water become oxygen deficient due to anaerobic bacteria, reduction occurs, okay. So usually soil horizons becomes gray in color, shade of gray, it is called graying due to reduction, ओके। रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर EHPH की बात करते हैं तो EHPH होता क्या है? टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टू अकर इज इंडिकेटेड बाय रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, तो इसको EH बोलते हैं। ये आप जियोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो EH ऑफ द एनवायरमेंट इज एक्चुअली द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टू अकर। इसका मतलब क्या है? इसको मिलीवोल्ट्स में नापते हैं, तो अगर EH की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होंगे, ठीक है ना, ठीक है, और अगर नेगेटिव होगी तो रिडक्शन होने के चांसेस होंगे, ठीक है ना। सो इफ EH इज नेगेटिव there will be reduction. Abundant oxygen is dissolved in more surface water and the EH is predominantly positive in weathering environment, okay. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेदरिंग एनवायरनमेंट होते हैं वहाँ पे EH क्या होगा, तो EH यूजली पॉजिटिव होगा बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब EH is positive, okay. However, in some localities such as below the water table and in waterlogged soil, reducing condition can prevail, okay. So due to anaerobic bacteria, कोई stagnant water होती है या waterlogged soil होती है
वहाँ पे अनएरोबिक कंडीशन हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं हो पाती, and due to that reduction happens and AH becomes negative. So बार बार ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है ये EHPS डायग्राम, और इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा एनवायरनमेंट किस किस AH पोजीशन पे आते हैं. So as you can see here, this is your x axis पे अपना pH है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब अगर हाई pH है तो ऑब्वियसली एल्कलाइन है, एंड लो pH है तो एसिडिक है, ठीक है. तो दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज हाई एल्कलाइन. दिस इज योर EH इन ऑर्डिनेट और y एक्सिस. ओके, पॉजिटिव EH reflects oxidation and negative EH reflects reduction. Okay, so here you can see there are some alphabets are given such as P, S, A, G, W, B. What are these alphabets? These alphabets are actually representation of various type of environment. So आप धीरे धीरे बारी बारी में देखते हैं. यहाँ पे 4 quadrants हैं, तो this quadrant represents acid and oxidizing. ठीक है, तो 7 से नीचे तो एसिडिक एनवायरनमेंट है, 0 से ऊपर है तो पॉजिटिव है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है. अगेन सेम फॉर एल्कलाइन, ऑक्सीडाइजिंग, एसिड, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट. क्यों है रिड्यूसिंग, क्यों है नेगेटिव है, और एसिडिक क्यों है, क्योंकि 7 से कम है. एल्कलाइन एंड रिड्यूसिंग. सो होप यू गेट द पॉइंट. अब हम सबसे पहले पहला एनवायरनमेंट पे आते हैं, P इज प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो रेनफॉल जो होती है वो अपनी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट पे होती है, ठीक है ना. सो रेनफॉल. देन देयर इज S, यानी कि स्ट्रीम वाटर इज आल्सो एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग. ठीक है, तो अपना स्ट्रीम वाटर इज आल्सो एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग. देन देयर इज बॉग वाटर, B. तो B कहाँ पे है, यहाँ पे है. So definitely this is acidic and it is in between oxidizing and reducing. So it might be reducing, it might be oxidizing. Okay, bog water क्या होता है, अपना जो दलदल टाइप का वाटर होता है, ठीक है ना. Then there is waterlogged soils. Waterlogged soils are specifically acidic and reducing. Okay. Then groundwater is what, alkaline and reducing. ये आपको ध्यान में रखना है. तो groundwater जो होता है वो alkaline and reducing होता है. Then there is A, aerated alkaline environment. Okay, so this is all about oxidation. Then there is hydration. So hydration is transitional between chemical and mechanical weathering. It occurs when minerals absorb water molecule on their edges and surfaces. Okay, तो अगर मिनरल के एजेस या surfaces, यानी कि मिनरल ग्रेन जो होते हैं उनकी एजेस और सरफेसेस पे वाटर मॉलिक्यूल अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो हम उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल इन सिंपल सॉल्ट इन देयर क्रिस्टल लैटिसेस, अदरवाइज चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल. फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी कि जब वाटर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रिस्टल लैटिस, द मेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ मिनरल इज नॉट चेंज्ड, ओके, इन हाइड्रेशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो हम अगर एग्जाम्पल देखें तो एनहाइड्राइट एक मिनरल होता है, ठीक है, विच अ वेराइटी ऑफ जिप्सम. तो कैल्शियम सल्फेट CSO4 में अगर वाटर आ जाए तो CSO4 डॉट 2H2O हो जाता है, राइट. एंड दिस वाटर इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर जिप्सम. ओके, so the water in crystal lattice leads to an increase in volume which may cause hydration folding in gypsum sandwiched between other beds. Under humid mid-latitude climates, brownish to yellow soil colors are caused by the hydration of reddish iron oxide hematite to rust color goethite. The taking up of water by clay particle is also a form of hydration and it leads to the clay swelling when wet. Hydration assists other weathering process to by placing water molecule deep inside crystal structure. So कहने का मतलब क्या है, the crux is that due to incorporation of this water, minerals volume increases, and due to this increase in volume, there is a pressure in the rock itself, and it aids in the weathering process. Okay, other weathering process. Okay, so hydration assists other weathering processes
by placing water molecule deep inside the crystal structure. Okay, so जैसे आपने क्ले के बारे में सुना होगा, जैसे अपनी जो स्मेक्टाइट क्ले होती है वो स्वेलिंग क्ले होती है, एंड ड्यू टू दैट वेदरिंग इज इजीली पॉसिबल. ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको रिएक्शंस दिख रहे हैं. हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन. सो गेन इज हाइड्रेशन, लॉस इज डिहाइड्रेशन. तो हेमाटाइट इज वेदरिंग मिनरल, वेदर्ड मिनरल. ठीक है, तो अभी हमने ऑक्सीडेशन में हेमाटाइट की बात की थी कि जो फेरोमैग्नीशियन मिनरल्स होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो हेमाटाइट बनाते हैं. एंड व्हेन दिस हेमाटाइट incorporates water into its crystal structure, it becomes goethite hydration. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है. Same for gypsum. Okay, anhydrite. Gypsum. In this second case, there is dehydration happening. Okay, the gypsum is CSO4.2H2O, and if there is a loss of water, there will be anhydrite. If there is a gain of water, the mineral the reaction will reverse and it will form gypsum. Okay, so if there is CSO4, that is anhydrite, plus 2H2O, we will get gypsum. And if there is CSO4.2H2O, that is gypsum, and water is lost, we will get CSO4 only plus H2O. Okay, so this is all about hydration. अब हम बात करते हैं कार्बोनेशन की. सो कार्बोनेशन इज नथिंग, इट इज सेम एज सोल्यूशन और डिसोल्यूशन, जो हमने सबसे पहले बात की थी, बट इट इन्वॉल्व्स पर्टिकुलर मिनरल दैट इज CaCO3 and particular acid. Okay, H2O3 acid. H2CO3 acid. Okay, so when carbon dioxide dissolves in natural water, it becomes carbonic acid. Okay, so carbonic acid is formed. So carbonic acid is formed, which then dissociate into hydrogen ion and bicarbonate ion. ठीक है, and carbonic acid attacks mineral forming carbonates. ओके, तो जो कार्बोनेट के मिनरल होते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड अटैक करता है एंड उनको डिसॉल्व करता है. सिंपल सी बात है, तो ये कार्बोनेशन होता है. ठीक है ना, तो कार्बोनेशन यूजुअली जो कैल्केरियस रॉक्स होती हैं जैसे कि लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स, वेयर द मेन मिनरल इज कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट, देयर कार्बोनेशन हैपेंस. सो एज यू कैन सी हियर, CO2 is getting dissolved in water forming H2CO3. H2CO3 is a carbonic acid which then again attacks on CaCO3 to form calcium bicarbonate and dissolve it. ओके, यहाँ पे एल्बाइट की भी बात हो रही है. तो एल्बाइट एक फेल्सपार होता है, प्लेजियस फेल्सपार, एंड ड्यू टू दैट इट फॉर्म्स kaolinite. ओके, सो इट इज द सेम एज dissolution process. So this is all about carbonation. Then there is chelation. तो chelation एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. So chelation is the removal of metal ions and in particular ions of aluminium, iron and manganese. ठीक है, तो aluminium, iron and manganese, ये metal ions जब remove होते हैं by organic acids. ओके, तो किसी भी मिनरल में जब ये आयंस रिमूव हो रहे हैं ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड सच एज फुलविक एंड ह्यूमिक एसिड. अब इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं बिकॉज ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है. आपको इतना ध्यान रखना है कि ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड्स टू फॉर्म soluble organic matter complexes. The chelating agents are in part the decomposition products of plants and in part secretion from plants food. ओके, सो ये ऑर्गेनिक एसिड जो अटैक कर रहा है, ये ऑर्गेनिक एसिड यूजुअली हमारा प्लांट से निकलता है. ओके, सो दिस इज नोन एज चिलेटिंग एजेंट, organic acid. Okay, and due to this organic acid, these metal ions are removed from the mineral.
So these are able to mobilize metal cations such as Fe3 plus and also Al3 plus, which are virtually insoluble under normal EHPS conditions. Chelation encourages chemical weathering and the transfer of metal in the soil or rock. Okay, तो यूजली अगर आपको बता दूं Fe2 plus जो होता है वो वेरी soluble होता है, बट Fe3 plus is not that much soluble. तो ये क्या करता है, चिलेशन Fe3 plus को भी मोबिलाइज कर सकता है. ठीक है. A good example of natural chelation is provided by lichens that increase the rate of chemical weathering on rock surfaces on which they grow by secreting organic chelating agents such as organic acids. And in addition to their role as chelating agents, plant also enhance chemical weathering processes by retaining soil moisture and by acidifying water by release of CO2 and various type of organic acid during decay. ठीक है. तो प्लांट का रोल क्या होता है, जैसे कि लाइकन एक तरीके की फंगस होती है. ठीक है. तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह रिलीज करता है, एंड ड्यू टू दैट मेटल आयंस आर लीच्ड आउट फ्रॉम द रॉक सर्फेसेस. ओके. और उसके अलावा इसका क्या होता है, ये जब डिके होती हैं तो CO2 रिलीज करती हैं. ठीक है. एंड व्हेन CO2 इज रिलीज्ड, waters become more acidic. ओके. तो ये रहा हमारा चिलेशन की बात. अब हम बात करते हैं cation exchange. So cation exchange is a process in which obviously you can see ions are exchanged. Okay, and when these ions are exchanged, a new mineral may form. So ion exchange is a process whereby ions in a mineral are exchanged with ions in solution. For example, exchange of sodium for calcium. Most ion exchange take place between cations, but anion exchange also occurs. तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि cations ion exchange में cations का रोल ज़्यादा होता है. ठीक है. लेकिन anion भी होते हैं. Anion is not that much important. This reaction causes one mineral to be altered to another. यानी कि नए मिनरल में चेंज हो सकता है. And in this process, release soluble ions into solution. Ion exchange is particularly important in alteration of one clay mineral to another. तो cation exchange या ion exchange आप बोले तो उसमें सबसे ज़्यादा जो important है वो ये है अपना क्ले का ऑल्ट्रेशन. ठीक है. तो स्मेक्टाइट एक क्ले होती है, और वो अगर इलाइट में चेंज होती है तो उसमें भी, इलाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्ले, उसमें अगर ये चेंज होती है तो उसमें कैटायन एक्सचेंज की प्रोसेस होती है. ठीक है. जियोलाइट एक मिनरल होता है, सिलिकेट मिनरल, उसमें भी ये ऐसा ही कुछ चेंजेस होते हैं. सो आयन एक्सचेंज ऑफ आयंस, प्रिंसिपली कैटायंस बिटवीन सॉल्यूशंस एंड मिनरल्स. हियर यू कैन सी पोटेशियम क्ले प्लस Mg2 प्लस. ठीक है. तो Mg अगर सोल्यूशन में Mg है, Mg2 प्लस है, Mg2 प्लस इधर आ जाएगा एंड K प्लस बाहर आ जाएगा. सो इट विल बिकम Mg क्ले. ओके. सेम गोज फॉर Ca zeolite. So it is by far the most common clay minerals which typically have rather loosely bonded cations. So ये cation exchange क्यों होता है? Because क्ले मिनरल्स का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत सारे के टाइप्स के कैटायंस होते हैं. तो लूजली बॉन्डेड कैटायंस होते हैं. ड्यू टू दैट आयन एक्सचेंज इज इजीली पॉसिबल. ओके. सो ईच टाइप ऑफ क्ले मिनरल हैव डिफरेंट प्रोपेंसिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ कैटायंस, यानी कि टेंडेंसी ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैटायंस which can be measured by its cation exchange capacity. ओके. तो CEC कैपेसिटी एक होती है क्ले मिनरल में, इसको मिली इक्विवेलेंट्स पर 100 ग्राम ऑफ क्ले से नापते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सब एरियल वेदरिंग. कि वेदरिंग से जो प्रोडक्ट निकलता है वो कौन कौन से होते हैं. ओके. सो पहला है अपना सोर्स रॉक रेजिड्यू, देन सेकेंडरी मिनरल्स, देन सोल्यूबल मटेरियल. ओके. तो पहला सोर्स रॉक रेजिड्यू क्या है? कंसिस्ट ऑफ केमिकली रेजिस्टेंट मिनरल्स एंड रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट रॉक. ओके.
तो सोर्स रॉक रेजिड्यू में आप देख रहे हो सोर्स रॉक आ रही है, तो जब कोई वेदर्ड रॉक जो रॉक है वो वेदर्ड होगी है, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस मिनरल्स होंगे सच एज क्वार्ट्ज यू कुड से, ओके, and if there are any rock fragments of original minerals are there, we call it as rock residue, okay, source rock residue. Then there are secondary minerals which are formed, जिसके बारे में बात करते हैं, अब इतने सारे minerals बताए हमने. तो most dominant secondary minerals are clay minerals, iron oxide such as hematite और goethite, aluminum hydroxide such as gibbsite, ठीक है. तो अगर क्ले मिनरल्स की जैसे कि केलोनाइट है, इलाइट है, ठीक है, वो और ज़्यादा प्रोलॉन्ग वेदरिंग होती है तो वो गिब्साइट बन जाता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है. अंदर एक्सट्रीम वेदरिंग कंडीशन केलोनाइट विल बिकम गिब्साइट. इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. अब ये टेबल है जिसमें सारे मिनरल्स दे रखे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी. Then there is soluble material. These are the soluble part of the parent rock जो वाटर में soluble हो जाते हैं, ठीक है. So inorganic constants of the river are most soluble product of weathering. तो आप देख सकते हो ये एक सीक्वेंस है inorganic constant का रिवर में. तो सबसे ज़्यादा HCO3 अपना बाइकार्बोनेट आयन, फिर Ca2+, फिर सिलिसिक एसिड, फिर SO4 2-, Cl-, Na+, Mg2+, K+. तो ये सीक्वेंस आपको याद करना ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है. अब हम देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल्स अंडर कंडीशन ऑफ वेदरिंग. कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, कौन से स्टेबल नहीं है. तो हम देखते हैं सैंड एंड सिल्ट साइज मिनरल, ठीक है. तो वो मिनरल जो सैंड और सिल्ट साइज के यानी कि कोर्स मिनरल्स हैं, ठीक है ना, तो सबसे अनस्टेबल है. तो यहाँ से मैं एरो खींचूंगा, हाईली स्टेबल and less stable. So olivine is most unstable mineral. Why? Because it is formed in a mantle. Then there is Ca plagioclase, pyroxene, MP both. तो ये बोन रिएक्शन सीरीज की तरह ही आप इसको उल्टा याद कर दीजिए तो ये अपना बन जाएगा. क्ले साइज मिनरल की बात करें जो बहुत ही कम साइज के होते हैं, ठीक है. तो सबसे अनस्टेबल जो होता है वो हैलाइट होता है अपना सॉल्ट NaCl, ठीक है. जिप्सम भी बहुत कम स्टेबल होता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है. ऐसा ऐसा करके कैल्साइट, ओलिवीन, ठीक है, ऐसा ऐसा करके ये नई स्कीम है, ठीक है ना. तो आपको ये वाली स्कीम याद करनी है, नॉट दिस वन. यूजली चिल्ड्रन रिमेंबर दिस स्कीम, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मिनरल दे रखे हैं, सारे मिनरल्स दे रखे हैं. तो सबसे जो स्टेबल होते हैं वो ये देखो क्ले मिनरल्स यानी कि गिब्साइट, बोहेमाइट, अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं. हेमाटाइट होगी, Fe2O3, गोएथाइट, मैग्नेटाइट, एंड देन दियर जर्कन जो होता है वो सबसे अपना हाईली स्टेबल होता है, ठीक है. सो एज फार एज वेदरिंग इज कंसर्न द ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल मिनरल्स इज एज फॉलोज. तो ये अपना क्ले मिनरल्स हैं, वर्मिकुलाइट, मोंटोमिनराइट, ठीक है, इसको स्मेक्टाइट भी बोलते हैं, कैलोनाइट, गिब्साइट एंड हेमाटाइट. हेमाटाइट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, Fe2O3, देन गिब्साइट होता है, देन केल्नाइट, मोंटोमिनराइट एंड वर्मिकुलाइट. तो here are some major secondary minerals. ओके, तो ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन से क्वार्ट्ज है, तो क्वार्ट्ज भी अपना सेकेंडरी मिनरल हो सकता है, ठीक है ना. अब वेदरिंग रॉक, तो ये ज़्यादातर सोर्स रॉक रेजिड्यू में क्वार्ट्ज आता है. अमॉर्फस सिलिका हो सकता है, ओपलिन सिलिका होता है ड्यू टू, तो एज यू कैन सी यहाँ पे हाइड्रेशन हुआ है, तो दिस इज योर ओपलिन सिलिका, ओके. वाटर कंटेंट इज यूजली मोर देन 10%. एल्यूमिनियम की बात करें तो गिब्साइट एंड बोहेमाइट जिसकी बात कर रहे थे, ठीक है, Al2OH6, AlOH. देन हाँ, ऑक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हेमाटाइट, गोएथाइट, एनाटेस, ओके, Fe2O3, FeOOH, गोएथाइट. वाटर जब ज़्यादा हो जाता है तो हेमाटाइट, गोएथाइट बन जाता है. क्ले मिनरल्स की बात करें तो केलोनाइट इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी, ओके. देन देयर इज इलाइट ग्रुप, स्मेक्टाइट, क्लोराइट, वर्मिकुलाइट, मिक्स्ड लेयर, ओके. सो दीज आर ऑल सेकेंडरी मिनरल्स.
So as you can see here how जैसे हमारा एल्बाइट है, यानी कि प्लेजोक्लेस या फेल्सपार बोले हम डायरेक्ट सीधा, तो ये सीधा कैसे कैसे गिब्साइट में चेंज हो जाता है, बदल हो जाता है, ठीक है ना। तो एल्बाइट पहले स्मेक्टाइट बनेगा, स्मेक्टाइट से कुछ आयंस निकलेंगे, केल्विनाइट बनेंगे, केल्विनाइट से गिब्साइट। सिमिलरली फॉर ऑर्थोग्लेस गिब्साइट। तो एक्सट्रीम वेदर्ड में क्या होगा, एक्सट्रीम वेदरिंग होगी तो एंड में जो गिब्साइट बनेगा वो सबसे स्टेबल रहेगा, ठीक है। सिमिलरली गोस फॉर मस्कोवाइट, बायोटाइट, देखो गिब्साइट बन रहा है, हॉर्न ब्लैंड है, ठीक है, स्मेक्टाइट, गोएथाइट, केल्विनाइट एंड एंड में गिब्साइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेदरिंग। तो ये हमने पढ़ लिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेदरिंग। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।